Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहे बच्चों। आमांडा को डिस्कस करने के पहले 1 मिनट 31st को सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है उसके बारे में बात कर लूँ। एक क्वेश्चन रहेगा एक आपके लिए स्वीट चैलेंज। मैंने बार बार कहा है कि एग्जामिनेशन में उतनी ही बातें काम आती हैं जो आप अपने पैशन से, अपनी मनुष्यता से प्रेरित होकर पैदा करते। टीचर ने कहा, किताब कहा, सिलेबस कहा, लेकिन एक इंटेंस लव फॉर लर्निंग, एक इंटेंस पैशन फॉर लर्निंग, उससे गाइड होकर जो आप जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं, वही विद्या एग्जामिनेशन हॉल में कृष्ण बनकर आपकी रक्षा करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कल भी बता दिए थे कि वांडा, एबी और मैडी के अराउंड एक क्वेश्चन रहेगा ही, और मेरे पास टाइम है 25 ऑफ जुलाई, 26, 27, 28, 29 तक पढ़ाता रहूंगा द 100 ड्रेसेस। और 38 को सब लोग सब्सक्राइब कर लिए ना चैनल को, राजीव सर जी के चैनल को, कि अपलोड हो 38 को ही अपलोड होगा, कि पता चल जाए, एक दूसरे से शेयर भी कर लेना, तो वो क्वेश्चन रहेगा ही। अब आ जाओ अमांडा के, आज इसको कंक्लूड करेंगे। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पोएम दैट इट इज एन indirect dialogue. It is an indirect and subtle dialogue, सूक्ष्म dialogue, अप्रत्यक्ष dialogue between a young girl named Amanda and one of her parents. Now it's a very sweet and funny poem. It enables us, the poem enables us to explore the psychology and innocence. The poem delves deep, अनुसंधान करता है यह कविता एक बच्चे के मनोविज्ञान। This poem delves deep into the psychology and innocence, निश्चलता, भीतरी पवित्रता of a little child. ठीक है, स्टैंजाज 2nd, 4th and 6th stanzas of this poem are in parentheses. What? That is a question. That is a question. Why are the stanzas 2, 4 and 6 given in parentheses? Because those facts haven't been spoken aloud. उसको जोर से नहीं बोला गया है। Those are the imaginary words. Those are the sweet imagination of a little girl. To have solitude, to have peace, to have silence, to have freedom. She creates when she is asked not to bite her nail, when she is asked not to bite her nail, not to hunch her shoulder, not to sit in a slouching way, in an awkward way, she immediately creates her own imaginary world. She says, she says that she were a mermaid. She wishes that she were a mermaid. एक जल पर she were a mermaid,
है नहीं ना, ये उसकी कल्पना है, इसलिए सी के साथ क्या लगा दिए, पास्ट टेंस का वर्ब, और वो भी प्लूरल नंबर। शी इमेजिन्स, शी विशेज दैट शी were a moment, she were a jalpari drifting blissfully, oh languid emerald sea, दादी माँ कहती ना, कंचन हरियर पैन रहे, कंचन हरियर, इमेराल्ड सी के सतह पे जैसे आप देखते हो, वो इमेजिन कर रही है कि मैं आई एम द सोल, अकेली मैं आई एम ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आनंद मग्न होकर, महा आनंद। ठीक है, फिर when she is asked if she had done her homework, when she is asked if she had polished her shoes, when she is asked if she had made the rooms clean, her room clean, again she goes, slips into sweet world of imagination, and she imagines that she were and often roaming the streets and making patterns. बचपन में आपने गांव में देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, वो एरी को ऐसे फिक्स कर देते हैं और ऐसे करके वो शकल बनाते हैं, तरह तरह का आपने इससे पैटर्न बनाते हैं। ओके, फिर आप देखते हो सिक्स्थ स्टैंजा में क्या देखते हैं आप, she is prevented from eating chocolates because she has acne. उसके मुंह पर कील मुहासा है, रोका जाता है चॉकलेट खाने के लिए। तो she imagines कि she was Rapunzel। ये रैपुंजल के मामले में एक बात तुमको बता देता हूं, ये तुम्हारे गाइड वगैरह में, ये इस सब में जो आंसर है वो मेरे ख्याल से गलत आंसर है। वेजिटेशन, लेट्यूस, ये सब प्रूव करने की चेष्टा की गई, रैपुंजल है। I'm afraid what I'm going to tell you may not be exactly right or correct, because I read something about Rapunzel some 40 years back, and according to my memory, Rapunzel may be something like a fairy. The story around Rapunzel revolves around a fairy and a prince. Rapunzel is perhaps a fairy somewhere locked on the top of a tower. She lets down her bright hair, and with the help of that bright hair, the prince ascends up, makes her free and marry her. The story might be something like that. मेरे पास देखो तेंजी है, समझ रहे हो? तो ये जिम्मेदारी में, और ये झंझारपुर सब में नहीं काम करता है, स्विट्जरलैंड में काम करता है। तो तुम में से जिन बच्चों के पास अभी स्मार्टफोन है ना, जैसे साक्षियां हैं, साक्षियों को, अंजलियों को, सनाओं को, आशीषों को जिम्मेदारी दे रहा हूं कि कल परसों तक मुझे रैपुंजल की कहानी बता देना अपने स्मार्टफोन पे देख करके, ठीक है? वो थोड़ा सा कंफर्म बोले। ओके, मैंने 40 इयर्स उससे भी पहले इंग्लिश के ही एक टेक्स्ट बुक में रैपुंजल की कहानी पढ़ी थी। माय मेमोरी is not helping me at this particular moment, तो तुम देख लेना रैपुंजल की कहानी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर करने के पहले फिर याद दिला दें, 38 को वो लोड हो जाएगा और हम भाई से आग्रह करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके कि आप आराम से 31 के लिए, और 31 के बाद हमने मना कर दिया है 1 वीक तक मैं आपको रिंग करूंगा तभी बात करेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ऑपरेशन
थिएटर के अराउंड रहूंगा, ठीक है। और रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड ऑनरेबल डायरेक्टर सर के टेबल पे रखा जा रहा है, परसों भी रखा जा रहा है। आप में से जो स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर नहीं हो रहे हो, उनके पेरेंट्स को कहीं से संभावना ही नहीं उनके लिए रह जाएगी। विद्यालय उस रिकॉर्ड को रखेगा सामने में। और बहुत बच्चे ये सब जो लेम एक्सक्यूजेज, अरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, दोस्तों से बात करके सिलेबस को समझ करके बुक से पढ़ रहे, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो स्कूल में खबर दे रहे हैं पिताजी स्मार्टफोन खरीद कर नहीं दे। अरे ये स्मार्टफोन नहीं आया तब तक बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? खूब पढ़ते थे, पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं। जिनको पढ़ना है वे सारी प्रतिकूलताओं में पढ़ रहे हैं, सीधा समीकरण। और जिनको नहीं पढ़ना है सब प्रकार की अनुकूलता में वो नहीं पढ़ते, और सामान्यतया प्रतिकूलता में ही जो पढ़ने वाले हैं वे पढ़ते हैं। तो ये सब लेम एक्सक्यूजेज नहीं कि मोबाइल नहीं है और स्विच मोबाइल का खराब है और मोबाइल चार्ज नहीं रहता, ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं। एनीवे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस? देखो द काइंड ऑफ थिंग्स Amanda does makes us conclude that she may be somewhere between 12 to 30. The kind of things she does makes us conclude that she may be somewhere between 12 and 13. She makes pattern with her bare feet on sands, but at the same time she has acne, muhasa, keel muhasa. So these two things tell us that she cannot be an adolescent, the perfect adolescent, or a teenager. She should be somewhere between 12 and 13. Because the kind of things she does, she imagines that she were a mermaid, she imagines that she were an orphan, but at the same time, she has acne. So she must be entering in her adolescence. So adolescence, she must be going to be included in a teenager. वो कहीं ना कहीं 12 से 13 वर्ष की बच्ची, जिस तरह के वो काम करती, अब बालों पे पैटर्न बनाना, लेकिन एक्ने भी है, तो उस अवस्था में लोगों को वो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। 12-13 में बच्चों के साथ ये सब कुछ होने लगता है। तो हम लोगों ने ये सारी बातें बोलो, अभी कहेंगे द काइंड ऑफ थिंग्स शी डज मेक्स अस कंक्लूड दैट शी मे बी समवेयर बिटवीन 12 and 13. She had contradictory characters. There were acne on her cheeks, but at the same time she was making patterns on sand. Sure, it cannot be said that she was a perfect adolescent or a teenager. She might be somewhere. She may be somewhere between 12 and. Question number 2. Who do you think is speaking to her? Most probably one of her parents is speaking to Amanda. Most probably one of her parents is speaking to Amanda. And why are the stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? Parenthesis, brackets, कोष्टक में आप देख रहे हैं, पढ़ेंगे, इस सबको ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है? Because those things haven't been spoken aloud by Amanda. Those were her imaginations. She was thinking so.
those facts, those things haven't been spoken. जोर से बोले नहीं गए हैं. Those were the imaginations made by Amanda. So these three stanzas are in parentheses. Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Amanda is the speaker of stanzas 2, 4 and 6. And do you think this speaker is listening to? She was not listening to the speaker of stanzas 1, 3, 5 and 7. She was busy. She was busy in her imagination. She was busy creating her own sweet world of imagination. She was not listening to the speaker of stanzas 1, 3, 5 and 7. Okay, and what could Amanda do if she were a mermaid? If Amanda were, अगर वो जल पड़ी होती तो क्या करती? She must have been drifting blissfully on the surface of, on the languid, quiet, shant, calm, quiet, and green sea, emerald, green, languid, calm and quiet. इसी तरह से देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो 6 to 8 हम अवेलेबल रहते हैं रिंग करके. अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्वेश्चन आंसर पूछने वाले पूछते हैं, उनको करवाता हूँ. थोड़ा आशीषों को, थोड़ा साक्षियों को, अंजलियों को एक जिम्मेदार, सनाओं को एक जिम्मेदारी दिए हैं. थोड़ा सा ये हमको देख के बता देना थोड़ा सा अपने मोबाइल पे. उसका जिस्ट सामरी किसका, वो लड़की, वो उसका क्या नाम था उसका, वो राकुंज, वो देख के बता देना. और एक्स्ट्रा भी ठीक से तैयारी करो. बिल्कुल तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये लॉकडाउन में. अगर तुम 8 से 10 घंटा प्लान्ड वे में पढ़ाई नहीं कर रहे, you cannot translate your dream into reality. Never. But you must do it. You shall do it. It is my trust in you that forces me to speak. So have a nice day. See you tomorrow.